राइट। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हमारे पास वो क्या देखनी है हम लोगों ने, वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाटर डाटा, डाटा एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, विजुअलाइजेशंस, फिर उसके बाद एग्जांपल। अब डाटा खुद क्या होता है? कहते हैं रिकॉल द डाटा साइंस प्रोसेस, आस्क क्वेश्चंस, डाटा कलेक्शंस, data explorations, data modeling analysis, visualizations, and representation of results. Today we will begin introducing the data collections and data exploration steps. सबसे पहले तो हम लोग ये 5 steps को अच्छी तरीके से याद रखें कि ask an interesting question. This is task number 1. To get the data. Number 2, explore the data. Number 3, model the data. Number 4, and number 5, communicate the realized the results. अब इसमें से आप लोग स्टेप बाय स्टेप एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, पांचवे से चौथे, चौथे से तीसरे, तीसरे से दूसरे, दूसरे से पहले, या पांचवे से वो पहले भी आ सकता है, उसके बाद फिर दोबारा से वही कंटिन्यू कर सकता है प्रोसेस को। So, इसको ये चीज को मॉडलिंग को क्या कहते हैं, डाटा साइंस प्रोसेस का नाम दिया हुआ है। ठीक। अब इस पे कहते हैं वाटर डाटा के अंदर डाटा is a single measurement of something on a scale that is understandable to both the recorder and the reader. Data are data are multiple such measurements. Claim everything is can be data. अब ये represent हुआ है social sites पे कि whatever we are claiming over here, that's all data is. अब मेरे पास what मेरे पास टाइप्स इसमें से हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग चीज देखते हैं, where do data come from? ठीक है, तो हम लोग इसमें जब देखते हैं कि मेरे पास डाटा कहाँ से आता है, ठीक है, तो वो जो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे पास तो समझने के लिए, एक तो मेरे पास इंटरनल सोर्सेज है, ठीक है, ऑलरेडी कलेक्टेड बाय और इन पार्ट ऑफ द ओवरऑल डाटा कलेक्शन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल आपने कहा बिजनेस centric data that is available in the organization database to record that day-to-day operations, the scientific or experimental data, to existing external sources available in ready to read formats from an outside source or for free or for a fee। ठीक है, या मुफ्त या पैसों के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक गवर्नमेंट डेटाबेस, स्टॉक मार्केट डाटा या रिव्यू। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेज हैं आपको डाटा हासिल करने के। एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्वायरिंग कलेक्शन एफर्ट्स अवेलेबल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स but acquisition requires special processing. For example, data appearing only in print form or data on websites. अब इसके अंदर मेरे पास कहते हैं कि जी where do data come from? ठीक है, ये API का मतलब है एप्लीकेशन इंटरफेस, RSS, रिच साइट समरी, वेब स्क्रैपिंग। अब मेरे पास इन तीनों को डिफाइन किया हुआ एक एक करके। अब एपीआई को कहता है कि यूजिंग अ pre-built set of functions developed by a company to access their services often pay to use, for example Google Map API, Facebook API, Twitter। ये तीनों बहुत आजकल फेमस हैं। अगर रिच साइट समरी के अंदर summarize frequently updated online contents, instant formats, free to read if its site has one, for example news related sites, blogs। ठीक है, web apping using software scripts or by hand extracting data from what it is displayed on a page or what is contained in the HTML file। तो ये मेरे पास एक चीज का आपको रिप्रेजेंट की हुई है कि आपको कैसे डाटा नजर आता है। अब वेब स्क्रैपिंग क्या है? तो सबसे पहले इसका अगर देखें, why do it? Older government or smaller news sites might not have APIs for accessing data or publish RSS feeds on or have database for download. You don't want to pay to use the API or the database. How do you do it? Should you do it? Okay. So you just want to explore, are you violating their terms of service, privacy concerns for websites and their clients? You want to publish your analysis or product? Do they have an API or fee that you are bypassing? Are they willing to share this data? Are you violating their terms of service? Are there privacy concerns? ठीक, उसके बाद आप क्या चेक करते हैं?
What kind of values? Types of data. ये बड़ा important है जी आपके पास. What kind of values are in your data types? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा एक न्यूमेरिक है जिसमें इंटीजर फ्लोट्स हैं, बूलियंस हैं, बाइनरी और ट्रू फॉल्स वैल्यूज हैं, स्ट्रिंग्स हैं, सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स हैं. ये तीन तरह के आपके पास. फिर उसके बाद वो कहता है टाइप्स ऑफ डाटा में व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज आर इन योर डाटा. डाटा टाइप से कंपाउंड, कंपोज्ड of a bunch of atomic types. इसमें date and time, list, dictionaries, ये सारे के सारे x और कॉलन y के साथ है. where x is the आपका नेम है और y क्या है उसकी टाइप है. ठीक है, तो ये नेम ऑब्वियसली अगेंस्ट द टाइप आपका पेयर एक बनाया हुआ है. ठीक है, नीचे एक रिकॉर्ड दिखाया हुआ है, स्टूडेंट रिकॉर्ड. फर्स्ट टाइम केविन, लास्ट टाइम राइडर है तो उसकी क्लासेस के लिए ये अगेंस्ट उसकी पांच, ये 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स के अगेंस्ट एनरोल रजिस्टर्ड है. ठीक है. फिर उसने कहा टाइप्स ऑफ डाटा में हाउ इज योर डाटा रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर्ड. डाटा फॉर्मेट्स टेबुलर, स्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा. टेबुलर डाटा क्या होता है? अ डाटा सेट दैट इज टू डायमेंशनल टेबल where each row typically represents a single data record and each column represents one type of a measurement. CSP, T, SP, XL, S, X, etc. ये types हैं. ठीक है जी. इसको क्या कहते हैं? टेबुलर डाटा. फिर स्ट्रक्चर डाटा क्या? ईच डाटा रिकॉर्ड रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ a possibly complex and a multi-tiered dictionaries, JSONs, XML, etc. ये इसकी structured data types हैं. फिर semi-structured data क्या कहते हैं? Not all records are represented by the same set of keys, or some data records are not represented using the key values pair structure. तो ये मेरे पास तीन तरह की हैं रिप्रेजेंट करने के टाइप्स ऑफ डाटा. और इसमें जो टेक्सटुअल डाटा है आपके पास, इट रेफर्स टू systematically allocated vector materials consisting of written, printed, or electronic published words, typically either purposefully written in a transcripted from speech. तो एक टेक्सुअल है. टेम्पोरल डाटा क्या है? टेम्पोरल डाटा इज डाटा वेरीज ओवर टाइम. A temporal data denotes the evolution of a subject, characteristics over a period of time. In general, जो data takes the form d equals to f of t. तो ये मेरा टेम्पोरल डाटा की इक्वेशन है. जियोलोकेशन डाटा, जियोलोकेशन तीसरी टाइप ऑफ डाटा की है. जियोलोकेशन डाटा इज अ information that is collected according to the physical location of a device, person, department or an organization. तो ये आपके पास टेबुलर डाटा का एक फॉर्मेट है दिखाया हुआ है आपके पास. अगेंस्ट यहाँ पर present, यहाँ पर दिखाया हुआ एक्स आपके पास जो मेरे पास एक present is typically collected with you consist of written, printed or electronic published words, typically either in a transcript from speech. तो ये बेसिकली आपको इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल डाटा रिप्रेजेंटेशन हो रही है. ईच टाइप ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड अ वेरिएबल, features or an attribute of a data. Sequential ID, status, and durations are variables or attributes. The number of attributes called the dimensions. We expect each table to contain a set of records or observations of same kind of objects or events. Our table above contains observation on writes checkouts. मसलन यहाँ पर आप देखें ये 0 पे है, जिस ये आपका ID है, फिर उसका वो आईडी है, फिर उसका स्टेटस है, फिर उसका ड्यूरेशन है, फिर उसका स्टार्टिंग डेट है, फिर उसका उसका स्टेशन है, फिर उसका एंड डेट है, फिर एंड स्टेशन है, फिर बाइक नंबर है, फिर उसका सब टाइप है, फिर जिप कोड है, फिर उसके बर्थ डेटा है. तो ये सारा कुछ उसका एक्सप्लेन किया हुआ है. फिर उसने कहा हुआ कि मेरे पास विजुअल सी अभी टाइप क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या आती हैं. इज अ वेरिएबल एंड कैन बी इधर डिस्क्रीट या कंटिन्यूस. डिस्क्रीट में फाइनाइट, कंटिन्यूस में इनफाइनाइट नंबर्स में आपके पास आते हैं. फिर डिस्क्रीट में आपके नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स फॉर्मेट में है, और जहां पर मेरे पास कंटिन्यूस में उसकी हाइट इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल्स फॉर्मेट में है. कैटेगोरिकल वेरिएबल्स नो इनहेरेंट orders among the values. For example, what kind of path you have is category variables. ठीक है, तो ये मेरे पास उसकी वेरिएबल्स हैं. फिर कॉमन इश्यूज कहाँ से आते हैं? विद डाटा में मिसिंग वैल्यूज, हाउ डू वी फिल इन रॉन्ग वैल्यूज, हाउ वी डिटेक्ट एंड करेक्ट मैसिव फॉर्मेट्स, नॉट unusable, not usable, the data cannot be answered the question posed. Dealing with first three issues is usually known as cleaning of data. तो ये मेरे पास है जी इसके पास. उसके बाद फिर मेरे पास आए थे मिसिंग वैल्यूज में आपके पास क्या जाता है. फिर कहता है कि जी डाटा इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल. फॉर एग्जांपल, many tables have been recorded value of for several attributes such as customer income and sales data.
Missing data may be due to equipment malfunctions, inconsistent with other record data, and thus deleted data are not entered due to misunderstanding. Certain data may not be considered important at the time of the entry, not registered history, no registered history, or change of data. Missing data may need to be inferred. तो ये मेरे पास इसके पास आए थे हैं फिर इसके बाद इसके मेथड्स हैं फिर इसको आपको नेक्स्ट इसमें लेक्चर्स में कराऊंगा इसको मेथड्स आप कैसे करोगे आई होप सो आपको काफ़ी हद तक इसकी समझ लगी होगी थैंक यू वेरी मच